एनआरआई दी की टैक्सेशन है? जिस आदमी की भी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उस करदाता को इनकम टैक्स की रिटर्न इंडिया में भरनी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो एनआरआई हो। कि सरकार ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लगता है कि एनआरआई दी टैक्स लायबिलिटी आ गई? एनआरआई को जो भी इंडिया से इनकम हो रही है हर इनकम पे टीडीएस कटता है, तो इनकम टैक्स को वो इन्फॉर्मेशन टीडीएस से ही पता चल जाती है। ਹੁਣ ਜੀ टीडीएस ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, टीसीएस भी होता है। टीडीएस किसी दूसरे द्वारा काटा जाता है और टीसीएस मैं खुद जमा करता हूँ। डीटीए ਹੁੰਦਾ ਕੀ है? पहली कंट्री में टैक्स दिया उसका वो बेनिफिट क्लेम कर सके, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी एक ही बार बन सके। ਫੈਮਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ एनआरआईज ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कोई एनआरआई इंडियन करेंसी का किस तरह से यूज करेगा, ये सारे जो प्रोविजन है वो फेमा एक्ट में। कित्थे लावां पैसा, presented by SBI Mutual Fund, a partner for life। स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਨੀ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। SBI ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਪੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਬੇਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਾਰਟ एनआरआई ਦੀ ਕੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਆਡੀਅנס ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ US ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ UK ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ CA ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। अमित शर्मा जी अंबाला तो बिलोंग करते और चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਖਾਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਗਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ NRIs ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ 1.6 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PIO ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ NRIs ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ NRIs ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਰੋਥ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ और साडा एंडेवर रहेगा कि असी तुहानू क्लैरिटी दईए, पर मेरी फिर भी एक खास रिक्वेस्ट रहेगी तुसी अपने इनकम टैक्स कंसलटेंट नू फाइनल राय लई जरूर कंसल्ट करना है, इनू एक नॉलेज सीरीज़ की तरह लेना है। अमित जी मेरा तुहाडे तो पहला क्वेश्चन ही यही है, NRI कंसीडर ही किनू कीता जांदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब नाल? टाइगर देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में NRI किसे कहा जाता है उसकी डेफिनेशन है कि जो भी व्यक्ति इंडिया में 182 दिन या इससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहता है एक साल में, या वो लास्ट ईयर में 60 दिन रहा हो और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन कुल मिलाकर रहा हो, तो उसे इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। अमित जी एक क्वेश्चन सीगा कि NRI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। बिल्कुल, एक NRI को RBI और फेमा के अंदर दो तरह के वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक अकाउंट बोला जाता है NRO, दूसरा अकाउंट बोला जाता है NRE। NRO अकाउंट उसकी इंडियन इनकम के लिए, या जो भी इंडिया में उसकी इनकम हुई है या इंडिया से उसने अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, वो सारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो NRO अकाउंट में रहेगा। और NRE अकाउंट एक नॉन रेजिडेंट का वो अकाउंट होता है जो इंडिया से बाहर जितनी भी उसकी इनकम हो रही है या इंडिया से बाहर उसकी जो भी फंड जमा है उसके लिए उसका NRE अकाउंट रखा जाता है जी। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ श्रोता ਨੂੰ मैं ज्ञान देना चाहांगे, ਅਸੀਂ NRI ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ NRO ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਖਾਸ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊ ਕਰੋ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ NRI ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾइल करना मजबूरी है कि वो अवॉइड भी कर सकता है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट
जिस आदमी की भी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस करदाता को इनकम टैक्स की रिटर्न इंडिया में भरनी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो एनआरआई हो। अगर किसी एनआरआई का इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है लेकिन उसका किसी सेक्शन में टीडीएस कटा हुआ है या उसका किसी भी तरह का कोई लॉस है जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, मान लीजिए उसका म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा लॉस है जिसका वो बेनिफिट अगले सालों की इनकम से लेगा, तो उसके लिए उसे रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर वो रिटर्न नहीं भरता तो ना तो वो इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है जो उसका टीडीएस कटा है, ना ही वो अपने लॉस को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और अमित जी, जब ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल यही बात, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅमित ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ। बिल्कुल। ਅमित ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ फाइल करने ही पैणगे? टाइगर, इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं, अगर कोई भी आदमी एनआरआई को कोई भी यहाँ से पेमेंट करता है, यानी एनआरआई को जो भी इंडिया से इनकम हो रही है हर इनकम पे टीडीएस कटता है, कि हम इंडियंस किसी भी एनआरआई को कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं कर सकते जिस पे टीडीएस ना काटा जाए। तो जो भी हम उसका टीडीएस काटते हैं तो इनकम टैक्स को वो इन्फॉर्मेशन टीडीएस से ही पता चल जाती है कि इस एनआरआई की ये इनकम हुई है और उसको इतना टैक्स उसकी लायबिलिटी बनेगी और उसे रिटर्न यहाँ फाइल करनी पड़ेगी। अमित जी, एक चीज़ होर होती, एक होंदी है टीडीएस जिन्होंने उसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, एक टीसीएस भी होता है, स्पेशली जब कोई ज़मीन बेचता है या कुछ करता है या कुछ, वो भी थोड़ा फ़र्क दस दो की होता दोनों फ़र्क। बिल्कुल, देखिए टीडीएस वो टैक्स है जो पेयर देता है। मान लीजिए मैं आपसे कोई इनकम कमा रहा हूँ तो आप जो मेरा टैक्स काटेंगे वो मेरा टैक्स आप टीडीएस काट रहे हैं, यानी टीडीएस किसी दूसरे द्वारा काटा जाता है और टीसीएस मैं खुद जमा करता हूं। जैसे आज की डेट में 10 लाख रुपए से बड़ी महंगी गाड़ी, जब मैं कोई भी गाड़ी खरीदने जाता हूं तो मुझे जो गाड़ी विक्रेता है उसके पास, ऑटोमोबाइल सेलर के पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी के पास एक टीसीएस एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, उसको टीसीएस कहा जाता है। यानी जो मैं खुद अपना टैक्स जमा कर रहा हूं वो टीसीएस है, जो कोई दूसरा मेरा टैक्स काट रहा है मेरी इनकम में से वो टीडीएस है। तो मैं एक जे सरल भाषा कहा, सपोज मैं तुहानू कोई एक लाख रुपए की पेमेंट करनी है और 10% का टीडीएस है, तो मैं तुहानू 90,000 देवांगा और सरकार नू 10% जमा करांगा, ये टीडीएस है। अगेन जे 1 लाख की मैं तुहानू चैक देना है लेकिन 1% मैनू टीसीएस करना है, तो मैं तुहानू 1 लाख देवांगा तो 1% जी सरकार नू जमा करा, ये ठीक मेरा? जी बिल्कुल जी। अमित जी, जेड़े साडे एनआरआईज ने, जिवें असी एनआरओ एनआरई की गल कीती, इन्हां नू इंटरस्ट इनकम भी आंदी है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट दे विचों, अपने फिक्स डिपॉजिट या एफसीएनआर, इहदे उत्ते थोड़ा सानू चानना पाओ तो फ़र्क दसो। देखिए, कोई भी एनआरआई इंडिया में 3 तरह के अकाउंट ऑपरेट करता है। सबसे पहला जो एनआरओ है, एनआरओ अकाउंट में जो भी उसे इंटरेस्ट इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल है और उस पर 30% बैंक की टीडीएस काट लेगा। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट फॉरेन करेंसी में मेंटेन होते हैं और इन पे जो भी उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उसमें उनकी किसी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना है। साडे देश की तकरीबन 90 कंट्रियां तो वध दे विच एक ट्रीटी साइंड है जिन्हों असी कहने DTAA या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। पहला तो अमित जी ये चानना पाओ, थोड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कई बारी साडे एनआरआई भरावां नूं ये आइडिया ही नहीं होंदा कि इस ट्रीटी की मदद नाल जिहड़े वो कंट्री के बशिंदे ने, जिहड़े वो टैक्स रेसिडेंट ने, ਉਹਦਾ की इनकम टैक्स या कैपिटल गेन से बेनिफिट उठा सकते हैं। पहला तो दसो DTA होंदा की है? एक एनआरआई का अपनी कंट्री, जिस कंट्री में वो रेजिडेंट है वहाँ पर भी और जिस अदर कंट्री से वो कमा रहा है वहाँ पर भी, तो उसका 2 जगह पे टैक्स लग रहा है। उस टैक्स को बचाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक प्रोविज़न किया है और आपस में जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको DTA एग्रीमेंट बोला जाता है, जिससे उन रेजिडेंट को ये बेनिफिट हो सके कि टैक्स एक ही जगह पे लगे। यानी अगर एक कंट्री में टैक्स उसने पे कर दिया है तो दूसरी कंट्री में जब वो ITR फाइल करता है तो वहाँ पर उस जो पहली कंट्री में टैक्स दिया उसका वो बेनिफिट क्लेम कर सके, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी एक ही बार बन सके। इस तरह के प्रावधान को DTAA कहा जाता है। अमित जी, ये अंदर एक छोटा जा सवाल DTAH ए सीगा, साडे श्रोता जरूर जानना चाहणगे
ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ कि वो उस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ DTA ਦਾ बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल, DTA का अगर कोई रेजिडेंट बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे जिस कंट्री में भी वो रह रहा है वहाँ से एक सर्टिफिकेट TRC यानी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट वो लेना पड़ता है। उसी के बेस पे दूसरी कंट्री में पता चलता है कि एक आदमी 2 जगह पे टैक्स दे रहा है और 2 जगह पे रेजिडेंट काउंट हुआ हुआ है। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ DTA ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਸਰटिफिकेट इशू करके देता है ਸਾਡੇ इंडियन नॉर्मली अगर किसी भी रेजिडेंट को TRC की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपने जिस कंट्री से वो सर्टिफिकेट चाहिए वो नॉर्मली हाई कमिश्नर काउंसलेट से या एम्बेसी से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जी जी जी। अमित जी, जिमें कोई इंडियन बशिंदा जिमें तुसी ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 4-5 ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ NRI ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? इनकम टैक्स में देखिए NRI के लिए सेम वही सोर्सेज हैं जो 5 सोर्सेज एक रेजिडेंट के लिए होते हैं नॉर्मली। जैसे सैलरी भी वो ले सकता है, कोई बिजनेस प्रोफेशन है, कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या कोई कैपिटल गेन है, या अदर सोर्सेज की इनकम है। एक रेजिडेंट और NRI में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई इनकम हो सकती है। किसी भी तरह की इनकम एक रेजिडेंट को भी हो सकती है, एक NRI को भी हो सकती है। जी जी जी। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NRI ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ NRO ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80C ਜੇ 올ਡ ਰਜੀਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 80D ਜਾਂ 24B, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? NRI के लिए 80C के प्रोविज़न जितने एक रेजिडेंट को अवेलेबल हैं वो सारे के सारे बेनिफिट एक NRI क्लेम नहीं कर सकता। NRI को कुछ रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स पे LIC, ELSS और ट्यूशन फीस, बच्चों की जो ट्यूशन फीस की 80C की डिडक्शन मिल सकती है वो क्लेम कर सकते हैं। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PPF ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ NRIs ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ प्रोविजन ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? टाइगर, एक NRI अकाउंट, एक NRI रेजिडेंट कोई भी PPF का अकाउंट इंडिया में अब ओपन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अगर एक NRI के रेजिडेंट बनते हुए उसने कोई PPF अकाउंट शुरू किया हुआ है तो वो जारी रख सकता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी NRI नया PPF अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। से अमित जी, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ PPF ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੋ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ NRI ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ NRI ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 साल के बाद। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਲਈ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। एक NRI आज की डेट में इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी जो लैंड से रिलेटेड है वो बाय नहीं कर सकता। और जिस तरह का एक रेजिडेंट को अगर उसकी ऑनरशिप पहले से है या इनहेरिटेड उसे प्रॉपर्टी आई है, जब उसको उस पर कैपिटल गेन होता है तो वो एक रेजिडेंट की तरह ही टैक्सेबल होगा। उसका सोर्स पे ही TDS कटेगा और उसका वही 20% और 20% के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। जी जी। सो ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਇਨਹੈਰਿਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ NRIs ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕसेशन कहता है तो कि TDS एप्लीकेबल है? बिल्कुल जी, उनका 20% TDS कटना है। लेकिन NRI को अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए सेबी और फेमा उसकी गाइडलाइंस के थ्रू ही उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी म्यूचुअल फंड है उसमें आज के टाइम में कोई भी NRI इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज वो नॉर्मली शेयर मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਮਾ जी, ਇਹ ਫੈਮਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ NRIs ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? देखिए सर, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 एक इंडिया में एक्ट बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट से। ये एक्ट रेगुलेट करता है कि एक इंडियन के पास कितनी फॉरेन करेंसी रहेगी या वो फॉरेन करेंसी का किस तरह से यूज़ करेगा, या कोई NRI इंडियन करेंसी का किस तरह से यूज़ करेगा। ये सारे जो प्रोविज़न है वो फेमा एक्ट में है। फेमा एक्ट से ही परमिशन लेके या फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग ही एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में डील कर सकता है। हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी की, कुछ इंपोर्ट करना है या कुछ भी हमें फ़ॉरेन में पेमेंट करनी है, तो उसके सारे रेगुलेशन फॉरेन फेमा एक्ट से ही एप्लीकेबल होते हैं। ਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ TDS ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ TDS ਕੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ NRI ਹੈ ਉਹੀ TDS ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? बट टाइगर, एक NRI के लिए दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं। अगर उसकी कोई भी ऐसी इनकम हुई है जिसमें डोमेस्टिक टैक्स, यानी हमारा जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है उसमें टैक्स रेट, या उस कंट्री के साथ जिसका वो रेजिडेंट है उस कंट्री के साथ जो ट्रीटी हुई है जो उसमें TDS का रेट बताया गया, जो उसमें बेनिफिट हो उनमें जो लोअर है उसका बेनिफिट ले सकता है। अगर उसके बावजूद भी उसको टैक्स ज़्यादा लगता है तो वो ITO के साथ इंडिया में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अब एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और लोअर टैक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत से ऐसे NRIs हैं जिनकी इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कॉन्टीन्यूसली उन प्रॉपर्टीज़ को खरीद बेच करते रहते हैं। तो बेचते हुए अगर एक NRI मान लीजिए एक प्रॉपर्टी इंडिया की बेच रहा है और उसको कैपिटल गेन नहीं हो रहा लेकिन उसका TDS कटना है, तो वो TDS अपने जो भी संबंधित ITO इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर कर लोअर टैक्स की रिक्वेस्ट डाल सकता है और उसको वो मिल भी जाता है। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ NRI। हाँ जी अमित जी, तुसी कुछ कह रहे सी? इनकम टैक्स में 197 सेक्शन में कोई भी NRI लोअर टैक्स के लिए अपने जो भी संबंधित इनकम टैक्स ऑफिसर है वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जी ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ डिविडेंड ऑप्शन लेता है या उस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया कि वो टैक्सेबल है? बिल्कुल जी, वो टैक्सेबल है और 20% से उस पर TDS भी कटता है और फिर उन्होंने इनकम च वो ऐड हो जाता है, अकॉर्डिंगली वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जी 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 प्रैक्टिकल गल किसी दी हुण सैकेंड जनरेशन ही अमित जी बाहर दे रह रही, क्योंकि जिहड़ी जनरेशन इंडिया तो जाती है वो कोई ना कोई इंडिया च कंटैक्ट रखती, उन्होंने पेरेंट्स होंदे हैं वो साल 2 साल बाद इंडिया विजिट करन आते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जम्मे तो इत्थे ही है। हुण हुंदा कि अमित जी वो जनरेशन या तो 30-40 साल हो गए उन्होंने हुण कनैक्ट नहीं है, उन्होंने पुरखे है नहीं इत्थे, या नैक्सट जनरेशन ही उत्थे बॉर्न हो गई है। जदों आंदे ने इंडिया दे विच हो सकता है उन्हों का इंडिया च कनैक्ट नहीं है तो वो पैसा ज़मीन वेच के बाहर दे मुल्क च लेके जाना चाहते हैं जिथे वो रहिंदे हैं, उहदा जो भी यूज़ करना चाहते हैं। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ और अपने प्रोसीड्स ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਉਹ अपनी रहन वाले मुल्क के अंदर भेज सकते हैं? एक NRI अगर इंडिया से कोई भी कोई प्रॉपर्टी बेचकर बाहर फंड लेके जाना चाहता है तो उसको परमिशन है। उसके लिए जो प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं उसको अगर वो पैसा अपने NRO अकाउंट से NRI में ट्रांसफ़र करना है या फ़ॉरेन ट्रांसफ़र करना है तो उसको उसके लिए एक 15 CB फॉर्म एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक फॉर्म लेना पड़ता है। उस फॉर्म के थ्रू परमिशन लेके वो पूरे के पूरे अमाउंट को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है। जी और अमित जी जेड़ा एग्रीकल्चर लैंड किसी ने इनहेरिट किया है या देश तो जाण तो पहला उन्होंने आप खरीदिया सी, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,
एनआरआईज ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ प्रोविजन है? सेम प्रोविजन है, एनआरआई के लिए कोई फर्क नहीं है उसमें। एग्रीकल्चर की इनकम भी जिस तरह से एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, ऐसे ही एक एनआरआई के लिए भी सेम उसी तरह से, जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र पर इंडिया में एक रेजिडेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो एनआरआई पे भी टैक्स नहीं लगता। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਐਨਆਰਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ $1000 ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ 85 ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 85,000 ਐਨਆਰਈ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੀਪੈਟਰੀਏਬਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਡ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, 50 ਲੱਖ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਐਨਆਰਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ CSCB ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ CA ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਕੈनिज्म अवेलेबल हैं? देखिए, नॉर्मली तो ये जो ट्रांसफ़र है उसके एनआरओ अकाउंट से उसके एनआरई अकाउंट में जब भी ट्रांसफ़र होगी तो नॉर्मली बैंक उससे कहता है कि आप 15C और 15CB फॉर्म दीजिए। जैसे ही अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा होता है तो इंडिया में नॉर्मली बैंक 5 लाख रुपए से ऊपर फिगर जाते ही उससे 15CA के लिए कहते हैं। 15CA उसकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि ये पैसा उसका कहाँ से उस पर ये पैसा आया है, यानी सोर्स क्या है और कहाँ वो किस कारण से भेज रहा है, यानी सोर्स और एप्लीकेशन उसे बताना होता है। 15CB फॉर्म जब बैंक उससे मांगता है कि आपने कोई भी पेमेंट अपने एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफ़र करी है तो आपको 15CB फॉर्म चाहिए, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस सर्टिफिकेट में ये बताना होता है कि जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है इस पे टैक्स लग रहा है या नहीं, या ये जो ट्रांसफ़र हुई है वो टैक्सेबल है या नहीं है, या टैक्स हुआ लगा है तो वो कैसे जमा हुआ है। उसके बेस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 15CB फॉर्म देता है, तभी बैंक वाले ये अमाउंट को फ़ौरन में ट्रांसफ़र करने देते हैं। जी जी अमित जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ NRI ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ NRI ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ 15-16% ਵੱਧ ਕੇ 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 24-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,27,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ NRIs ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ID ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमां ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।